ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، سیرت کوس کا پہلا حصہ عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 6 پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سونے اور جاگنے کا مصنوع طریقہ پڑھا تھا کہ یہ جیسے سونا جاگنا، قضاء حاجت کرنا انسانی عادات میں سے ایک عادت ہے، اسی طرح انسان کی فطری عادات میں سے اور تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے نہانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر انسان نہاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ عادت، یہ تقاضا اپنی مرضی سے پورا کریں گے، اس میں اسلام کی تعلیمات کی پیروی نہیں کریں گے، تو ایک وقتی طور پر ہمیں وہ جسمانی سکون یا عادت جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، لیکن یہ عادت ہماری عبادت نہیں بن سکتی۔ لیکن اسلام نے ہمیں ایسی پیاری تعلیمات دی ہے کہ ان تعلیمات کا خاص خیال رکھنے سے ہم اپنی اس عادت کو، اس تقاضۂ بشری کو عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو تعلیمات شریعت نے دی ہے ان کا خاص اہتمام کرنا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آدمی غسل خانے میں داخل ہو تو اس کے لیے ادب اور مصنوع طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے بایاں قدم غسل خانے کے اندر رکھیں۔ عام طور پر اگر ہم بے دھیانی سے دائیں قدم رکھ دیں گے تو سنت کے خلاف ہوگا، ہمیں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہم اگر تھوڑا سا ذہن میں یہ سوچ کر کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، میں نے وہ اپنانا ہے، تو ہمارا یہ قدم رکھنا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے ادب کے آدمی کو حد تک امکان سطر کو چھپانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ غسل کے دوران پردہ خوب ہو، اس میں کسی کی نظر نہ پڑے، اس بات کا اہتمام کرنا۔ چنانچہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، وہ بیان کرتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھنے گئی، ملنے گئی، تو آپ اس وقت غسل کر رہے تھے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پردے کا اہتمام کیا ہوا۔ تو یہ پردے کا خوب اہتمام کرنا یہ ویسے بھی شریعت کا حکم بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد یہ تعلیم ہے کہ جب بھی غسل شروع کرے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک اچھی طرح دھو دے، کیونکہ آگے انہی ہاتھوں سے ہی پورے جسم کے لیے پانی استعمال کرنا ہے، ملنا ہے۔ اگر ہاتھ پاک نہیں ہوں گے تو پھر باقی جسم کیسے پاک ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہاتھوں کو پاک کرنا، اور اس کے بعد پھر آدمی اپنے شرمگاہ کو استنجا وغیرہ کر کے اس کو پاک کر لے، اس کو صاف کر لے۔ اس کے علاوہ بھی اگر جسم پر کہیں گندگی ہے تو اس گندگی کو پہلے صاف کرے، کیونکہ اگر ان چیزوں کو پہلے صاف نہیں کریں گے، پانی بہاتے چلے جائیں گے تو وہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، گندگی پھیلتی چلی جائے گی۔ تو غسل کا مقصد تو طہارت حاصل کرنا ہے، تو ہاتھ پہلے صاف کرنے ہیں، استنجا کرنا ہے، جسم میں اگر کسی جگہ گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے اچھی طرح پہلے صاف کرنا ہے۔ اسی طرح یہ جب دو کام کر لیے، ہاتھ بھی دھو لیے
जिस्म को भी गंदगी से साफ कर लिया, इस्तिंजा वगैरह कर लिया, पर उसके बाद अगला काम यह है कि वुजू करना, और वुजू भी उस तरीके पर करना जैसे कि आदमी नमाज के लिए वुजू करता है, खूब एहतिमाम से शुरू से लेकर आखिर तक जितने वुजू के फराइज हैं और उसके अंदर जो मसनून तरीका है वो सारा तरीका अपनाकर मुकम्मल वुजू का जो अमल है ये मुकम्मल करना। उसके बाद यहाँ पर बात का ज़हन में ख्याल आता है कि हमने कपड़े नहीं पहने हुए, पता नहीं हमारा वुजू हुआ है या नहीं हुआ। ऐसी कोई बात नहीं, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये बात साबित होती है, मालूम होती है कि वो जो गुस्ल से पहले वुजू करते हैं वो मुकम्मल वुजू है। उससे आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं, जितने वुजू से किए जाने वाले काम हैं वो सब कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं। चाहे आपने कपड़े नहीं भी पहने हुए, वो वुजू आपका मुकम्मल है। उसके बाद फिर आपने वुजू करने के बाद इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका गुस्ल करते वक्त चेहरा किबला रुख नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क़ज़ाए हाजत के मौका पर मसनून तरीका पढ़ा है, तालीम पढ़ी है कि ना किबला की तरफ रुख हो, ना किबला की तरफ पुश्त हो। तो इसलिए ये गुस्ल में भी यही अदब है कि आदमी किबला की तरफ रुख करके ना खड़ा हो, बल्कि या तो शुमाल की तरफ मुंह कर ले या जनूब की तरफ, हमारे इस पाकिस्तान के इलाके में तो इस तरीके से हम किबला रुख ना। इसी तरह वुजू करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि बाकी सारे आज़ा को मुकम्मल धो लिए, पाँव के धोने का मामला ये है कि अगर गुस्ल खाना ऐसा है कि वहाँ पानी की निकासी मुकम्मल नहीं हो रही, वहाँ पानी जमा हो रहा है, मुकम्मल तौर पर वो फर्श जो है वो साफ नहीं हो रहा, पानी निकल नहीं रहा, तो फिर पाँव को पहले ना धो, क्योंकि वो पानी जो सारे गुस्ल का वुजू का वहाँ जमा है, धोने से फिर भी पाँव को दोबारा धोना ही पड़ेगा। तो पहले ना धोए, इसको मौखर कर दें, और जब बाहर गुस्ल खाने से बाहर निकले तो फिर पाँव को धोए। और अगर पानी साथ साथ निकल रहा है तो वुजू जब करना है तो मुकम्मल पाँव तक सारे आज़ा को मुकम्मल धो लेना है, क्योंकि वहाँ पे पानी ठहरने का कुछ इम्कान नहीं है। तो एक दफा पाँव धो लेंगे तो वो वुजू मुकम्मल हो। इसी तरह जब ये आपने वुजू कर लिया तो आप अगला काम ये है, सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले सर को गीला करना है, और इस तरीके से पानी डालना है कि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। जब मुकम्मल सर तर हो जाए तो फिर अपने जिस्म के दाईं तरफ पानी डालना है, फिर कंधे से लेकर पांव तक, फिर बाईं तरफ पानी डालना है कंधे से लेकर पांव तक। ये तरीका है मसनून। अगर आदमी इसका एहतिमाम कर ले, आजकल हमारे यहाँ शावर होते हैं तो उसमें हम नीचे खड़े हो जाते हैं, इस बात का अगर एहतिमाम कर ले कि पहले सिर्फ मैंने सर धोना है कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका ये है, उसके बाद मैंने दाईं तरफ पानी डालना है, फिर बाईं तरफ डालना है। सिर्फ इस अमल करने से ये गुस्ल वाला अमल आपका इबादत करना है। तो सिर्फ थोड़ा सा आदमी अपना जो है सोच और तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करना। तो सबसे पहले सर, उसके बाद फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, उसके बाद फिर पूरे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाना। ये भी मसनून तरीका है। वैसे तो फराइज में शुरू में मैंने लिखा है 3 फर्ज है कि कुल्ली करना, कि कुल्ली अगर आपका रोजा है तो सिर्फ मुंह में पानी डालें और उसे घुमाकर बाहर निकाल। एक दफा जो है कुल्ली करना फर्ज है, 3 दफा कर लेंगे तो सुन्नत तरीका हो। दूसरा ये है अगर आपका रोजा नहीं है तो फिर जो है वो गरारा करना, या गरगरा जिसे कहते हैं, कि मुंह में पानी लेकर मुंह को उठाकर हलक तक पानी ले जाकर फिर वापस जो है वो फेंकना। ये अगर एक दफा करना तो ये फर्ज होगा, और बाकी 3 दफा करना ये मसनून तरीका होगा, सुन्नत होगा। दूसरा फर्ज ये है कि अगर रोजा है तो फिर नाक में पानी इस तरह डालना, चुल्लू में पानी लेकर ऐसे नरम हड्डी तक पहुंचा देना। और अगर रोजा नहीं है तो खूब इसको अफक की तरफ खींचना, ताकि ये मुकम्मल नाक का जो हिस्सा है ये पानी से एक दफा तर हो, फिर वो वापस उसे फेंकना।
एक दफा ऐसा करना फर्ज है और 3 दफा ऐसा करना सुन्नत है। तीसरा फर्ज ये है कि आदमी पूरे जिस्म पर इस तरह पानी बहाए सर से लेकर कदम तक कि एक बार बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये एक दफा ये अमल करना फर्ज है और 3 दफा करना ये सुन्नत है। और इसमें खुसूसी तौर पर एहतमाम करना, अगर किसी ने घड़ी पहनी हुई है, औरतों ने चूड़ियां पहनी हुई है, या उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है, छल्ला पहना हुआ है, या इसी तरह जेवरात कानों में, नाक में जो सुराख करके पहने जाते हैं, उन सुराखों के अंदर को भी, अंदर वाले हिस्से को भी तर करना, यानी उसे हिलाकर वहां तक पानी पहुंचाना जरूरी है। अगर वो कान और नाक के जो जेवर के लिए सुराख किए हुए हैं उसका अंदरूनी हिस्सा तर नहीं होगा तो गुस्ल मुकम्मल नहीं। एक बाल बराबर की जगह खुश्क नहीं होनी चाहिए। इसी तरह वो आज़ाद जहां आमतौर पर पानी सही तरीके से नहीं पहुंचता, जैसे बगल है और इसी तरह नाक है और इसी तरह उंगलियों के अंदरूनी हिस्से हैं, या किसी का जिस्म सख्त है तो यहाँ उसको जो छुरियां पड़ी हुई हैं इसको भी मल कर इसके अंदर भी पानी डालना और उंगलियों के अंदर फिलाल करना, दाढ़ी का फिलाल करना, बालों को अंदर से उंगलियां डालकर उसको अच्छी तरीके से जड़ों तक कर करना, ये सारा अमल करना गुस्ल के लिए जरूरी है। अगर एक बाल बराबर की जगह खुश्क रह गई तो गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए तो गुस्ल करते वक्त 3 दफा बदन पर पानी बहाना मसनून तरीका, 1 दफा बहाना पर। गुस्ल के दरमियान कोई दुआ नहीं पढ़नी। जब आदमी कपड़े उतारता है तो उस वक्त किसी किस्म का जुबान से जिक्र करना उसके लिए जायज नहीं होता। हाँ, अगर करना है तो दिल में आदमी का। आमतौर पर हमने सुना है बुजुर्ग जो बड़े उम्र के होते हैं वो साल ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहते हैं, इस्तिंजा भी करते रहते हैं, गुस्ल भी करते रहते हैं। ये बेअदबी की बात है। जुबान से ना वॉशरूम में कोई जिक्र करना है ना गुस्ल खाने में कोई जिक्र करना, आपस में बात भी नहीं करनी, कोई सलाम कहे उसका जवाब भी नहीं देना, गुस्ल खाने में पेशाब भी नहीं करना, क्योंकि जैसे कि कल ही हमने हदीस पढ़ी थी कि जो आदमी गुस्ल खाने में पेशाब करता है उसको वसवसे की बीमारी लग जाती है, यानी पागलपन की पहली स्टेज उसके ऊपर तारी हो जाती है। इसलिए इसका खूब एहतमाम करना। जब बाहर निकले तो फिर पहले दायां कदम जो है वो बाहर निकाले, फिर उसके बाद बायां कदम निकाले। इन सारी बातों का अगर हम रोजाना जो नहाते हैं इसमें एहतमाम कर लेंगे तो हमारी ये आदत में रहेगी, इबादत बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी आदत को इबादत बनाने की कोशिश। मौजूदा दौर में जो गुस्ल खाने और लैट्रिन इकट्ठी बनी हुई है, कल मैंने अर्ज किया था कि अगर तो एक ही फर्श है जिसमें सिर्फ गुस्ल ही करना है तो फिर तो वहां पेशाब करना मना है, जैसे कि एक हदीस में कल भी मैंने अर्ज की थी। और अगर ऐसा गुस्ल खाना जैसे मौजूदा दौर में एक ही कमरा होता है, उसमें सीट अलग होती है और गुस्ल करने के लिए अलग से फर्श होता है, तो वहां अपने जो वॉशरूम के लिए सीट बनी हुई है उसमें तो पेशाब कर सकते हैं, उसमें कोई ममानत नहीं है। लेकिन जिस फर्श पे खड़े होकर आपको गुस्ल करना है वहां पेशाब ना किया जाए, चाहे वो पेशाब बह भी जाएगा लेकिन उससे भी वसवसे की बीमारी